Good afternoon, my dear students. We were discussing the concept globe, latitude and longitude. In this chapter, we have already discussed about the globe, its advantages and disadvantages. We also discuss about the latitude, significance of latitude, important latitude, and how latitude determine the different heat zone of the earth or climatic zone of the earth. We have also discussed about the significance of longitude and how longitude determine the different time zone of the earth. Yesterday, we discussed that how the longitudes are helpful to determine the different time zone of the earth. My dear student, as you are aware, according to longitude, our earth is divided into two hemispheres, eastern hemisphere and western hemisphere. So, according to longitude, we also divide our earth into different time zones. So my dear student, as you are aware, the angle of the earth is 360 and earth complete its one rotation in 24 hours. If we divide 360 degree by the 24 hours, so we will get the 15 degree. It means that earth rotate 15 degree in 1 hour, and if we divide the 1 hour by the 15 degree, or you can say that 60 minutes by the 15 degree, you will get the 4 minutes. So earth rotate 1 degree in 4 minutes. So our earth is divided into different time zone, or you can say that 24 time zone. 12 time zone are in the eastern hemisphere and 12 time zone are in the western hemisphere. So I told you that the prime meridian, that is also known as the GMT, Greenwich Mean Time, it is situated in the Britain. It passes through the British Royal Observatory. So from this meridian, or this prime meridian or GMT, we calculate the world time. That's why we divide our earth into different time zone or 24 time zone. The places that are situated in the east direction or eastern hemisphere, they are ahead in time according to longitudes, and those who are situated in the western hemisphere, they are behind in the time, or they have the lag of the time according to different longitude. So my dear student, as you are aware, approximately every 15 degree longitude, our time increase or decrease. If we are in the eastern hemisphere on 15 degree, 1 hour time will be increased. If we are in the western degree, then 1 hour time will be decreased. So you know very well about this phenomena or this principle. Now today we are going to discuss about the standard time. My dear student, as you are aware, the local time of places which are on different meridians will differ, thus causing confusion. जैसा कि आपको ज्ञात है कि अलग अलग मेरिडियन पर जो आपके प्लेसेस आएंगे, उनका जो टाइम होगा बेटा वो अलग अलग होगा, क्योंकि आपका टाइम जो है प्राइम मेरिडियन से आपका मेजर किया जाता है, और हर 15 डिग्री पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये 1 आवर आगे हो जाता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये 1 आवर पीछे हो जाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि सनराइज आपका ईस्ट डायरेक्शन से होता है, इसलिए यहाँ पे आपकी सनलाइट पहले पड़ती है। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। दैट विल क्रिएट ए कंफ्यूजन स्टेट, जो आपकी एक कंफ्यूजन स्टेट को क्रिएट करेगा। देयरफॉर it is necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time. इसलिए ये हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हम एक जो है लोकल टाइम अपने देश का, अपने कंट्री का अडॉप्ट करें। कहां से? जो उस देश की सेंट्रल मेरिडियन होगी, जो उस देश की
सेंट्रल मेरिडियन होगी, हम वहां से जो है उसको जो है एक टाइम जो है फिक्स करें, दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। वो आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा, यानी कि उस लॉन्गिट्यूड से आपके पूरे कंट्री का जो टाइम होगा वो आपका डिटरमाइन किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द लॉन्गिट्यूड दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट, हमारे देश में जो 82.5 डिग्री ईस्ट है इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया। हमारे देश की 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है ये आपके भारत का स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है, इसीलिए हम इसको IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से हम इसको जानते हैं। हाउ वी डिटरमाइन दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो आपकी ये मेरिडियन होगी, इसका जो लोकल टाइम होगा इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। यहां से हम अपने भारत का, अपने इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं फॉर दी होल कंट्री, पूरे देश के लिए, एंड इज नोन एज IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूड, कई ऐसे भी देश होते हैं जिनका लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड ज्यादा होता है, उस पर हम अलग अलग जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं, बट वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। सो नाउ क्वेश्चन राइज हियर, व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? अब हमने जैसा कि बताया आपको कि 82.5 डिग्री ईस्ट इज कंसीडर्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सो व्हाई वी टेकन 82.5 degree east as our Indian standard time, or why we choose the 82.5 degree longitude as our Indian standard time. Have a look, my dear, here. Here you will get that this is the map of India. As I told you, my dear student, about the latitudinal extent of India and longitudinal extent of India. So my dear student, if you have a look here, here is the South India. So according to this, you will find that this is our North India, this is our South India, this is our East India, and this is our West India. So इस तरह से हमारी डायरेक्शन जो है डिवाइड होती है। अब आपको मैंने बताया था कि जो ऐसे लेटे हुए होते हैं आपकी, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दीज आर दी लैटिट्यूड। क्या होते हैं बेटा ये आपके? दीज आर आवर लैटिट्यूड, ये हमारे लैटिट्यूड होते हैं। और उसके बाद जो हमारे ऐसे लॉन्ग होते हैं, यानी कि वर्टिकल जो लाइन होती है, ऐसे लॉन्ग जो होते हैं, ये हमारे जो हैं लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अगर हम लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें बेटा, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आप यहां से देख रहे हैं तो यहां से हमारा जो है, क्योंकि हम जो है साउथ एशिया में है, लेकिन हम यहाँ पे जो आपका जो है ऐसे सिंपल नहीं कर रहे कि दिस इज नॉर्थ इंडिया, दिस इज साउथ इंडिया, दिस इज ईस्ट इंडिया, दिस इज वेस्ट इंडिया। यहाँ पे हम इंडिया का जो इवेल्युएशन कर रहे हैं वो वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ग्लोब के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और ग्लोब के अकॉर्डिंग, लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो इंडिया लाई इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और अगर प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं इंडिया लाई इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सो इंडिया का आपके नीचे जो है यहाँ पे आपका जो है इक्वेटर है, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु के रीजन में कन्याकुमारी यहाँ पे है आपका, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है बेटा। यहाँ से हमारा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है, तो ये लैटिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है ये यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है बेटा, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और जब आप ऊपर की ओर जाते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर तक हमारा जाता है बेटा, यानी कि ये 36 डिग्री है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम यहाँ तक हैं, तो हमारा ये लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और आपने बीच में देखा होगा बेटा, ये लाइन जो बीचों बीच इंडिया से गुजर रही है, दिस इज आवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो अगर हम लैटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड इन इंडिया? इंडिया में लैटिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा? सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस है कि ये जो नीचे का एरिया आपका, दिस वन एरिया, दिस कंसिस्ट ऑफ द टॉरिड जोन एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द टेम्परेट जोन, क्योंकि ये जो है आपका 8 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, यहाँ तक ये आपका टॉरिड जोन को कंसिस्ट करता है, और ये जो आगे का जो आपका एरिया है, ये एरिया आपका टेम्परेट जोन को कंसिस्ट करता है।
तो इंडिया की जो क्लाइमेट है बेटा आपकी ट्रॉपिकल भी है यानी कि टोरिड भी है और आपकी टेम्परेट भी है। हम जो है टेम्परेट जोन में रहते हैं यानी कि हम पंजाब हरियाणा के रीजन में हम रहते हैं, तो ये आपका जोन होता है टेम्परेट जोन। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या होगी अगर आप थोड़ा सा माइंड पे जोर दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था दिस एरिया रिसीव दी वर्टिकल रेज, सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं और यहाँ पे आपकी स्लांटिंग रेज पड़ती है। अब यहाँ पे जो साउथ इंडिया का जो पार्ट होगा या ये इधर आपका सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है, यहाँ पे डे और नाइट जो बनेंगे बेटा उनकी जो ड्यूरेशन होगी, उनका जो टाइम होगा वो इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे 12 घंटे का ही दिन होगा और 12 घंटे की ही रात होगी। लेकिन यहाँ पे आपके जो दिन रात है उनका टाइम जो है बढ़ जाता है, ये स्लांटिंग रेज को गेन करते हैं, इसलिए दिन का समय आपका ज्यादा होगा और रात का समय आपका कम होगा। ये तो बात थी लैटिट्यूड की बेटा। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट आज का, लॉन्गिट्यूड, कि लॉन्गिट्यूड जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैसे डिटरमाइन करता है। अब बेटा आप यहां ध्यान से देखें, इफ वी लुक अकॉर्डिंग टू प्राइम मेरिडियन वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और हमारा जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस है यानी कि कितने लॉन्गिट्यूड पर हम रहते हैं, अभी आप यहाँ पे देखें ये 68 डिग्री है बेटा, और यहाँ पे आपका गुजरात है, गुजरात में हमारा जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट स्टार्ट होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। कहां से शुरू होता है बेटा? 68 डिग्री 7 मिनट से आपका स्टार्ट होता है। और जब आप आगे ईस्टर्न पार्ट्स की ओर जाते रहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश आपका लास्ट पॉइंट आता है, और यहाँ पे आपने देखा होगा 96 डिग्री, उससे थोड़ा सा आगे आपका यहां तक आपका जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यानी कि आपका लॉन्गिट्यूडिनल जो टोटल एक्सटेंट है ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आपका फैला हुआ है बेटा। अब अगर हम इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देखें, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट देखें बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 30 डिग्री। कितना होता है बेटा आपका? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री, क्योंकि आपका वैसे तो 29 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली शब्द मैंने यूज किया कि लगभग 30 डिग्री आपका जो है ये लॉन्गिट्यूड आपका होगा। अब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास आपका जो है टोटल आपका डिस्टेंस है बेटा यहाँ पे। अब 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड के आसपास आपका डिस्टेंस है बेटा। अब आप मेरे को ये बताइए कि सनराइज कौन सी डायरेक्शन से होता है? ईस्ट डायरेक्शन से होता है। कौन सी डायरेक्शन से होता है बेटा? ईस्ट डायरेक्शन से। तो इंडिया का जो ईस्ट डायरेक्शन है दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ इंडिया, तो यहां से सनराइज आपका पहले होगा। अब सनराइज पहले होगा तो ये एरिया में पहले लाइट आएगी गुजरात की बजाय। अब 30 डिग्री है, अर्थ 15 डिग्री में, 15 डिग्री जो रोटेट करती है वो कितने समय में करती है बेटा? 1 आवर में करती है। तो 30 डिग्री कितने आवर में करेगी बेटा? 2 आवर में करेगी। 15 डिग्री 1 आवर, 30 डिग्री 2 आवर में आपकी करेगी। तो यहां पे अगर सुबह के 8 बजे होंगे, इफ देर इज 8 ओ क्लॉक, अगर यहाँ पे सुबह के 8 ओ क्लॉक होंगे तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सुबह के 6 बजे होंगे। तो इस प्रकार से देर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन दी अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इज ऑफ 2 आवर, यानी कि हमारे पूरे देश में जो है 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन स्टेट हो जाएगी। तो इस कंफ्यूजन स्टेट को दूर करने के लिए हमने जो है एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड चूज किया है बेटा। यानी कि अगर आपके पास रफ नोटबुक है, अगर आप काउंटिंग लिखें बेटा अपनी रफ नोटबुक पे, आप लिखना शुरू करें बेटा 68 से, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97। अब टोटल जो आपने जो है 68 से लेकर 97 तक आपने काउंटिंग लिखी बेटा। अब आपने इसका मीडियम पॉइंट निकालना है बेटा। अगर आप 68 से काउंटिंग करते हैं बेटा तो इनका मीडियम पॉइंट मिलेगा बेटा आपको 82। देख लीजिए बेटा, टोटल आपके 32 हो गए बेटा, सॉरी टोटल आपके 30 लॉन्गिट्यूड हो गए।
तो 68 से आगे जब आप काउंट करेंगे तो 15 नंबर पे कौन सा आएगा बेटा आपका 82 आएगा। बेशक से काउंट करके देखिए बेटा, साथ साथ करते रहिए, क्लियर हो जाएगा आपको। 68 से जब आपने काउंटिंग करना शुरू की तो 82 आपका जो है सेंटर पॉइंट आया। और ऐसे ही जब आप अगर पीछे से काउंटिंग करना शुरू करते हैं, बैक काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 97 से आप काउंटिंग करना शुरू करते हैं, तो आपका जो सेंटर पॉइंट आएगा वहां पे जो 15 नंबर पे आएगा वो आएगा 83। यानी कि ऊपर से आ रहा है 82 और नीचे से आपका आ रहा है 83। अब बेटा 82 और 83 के बीच का पॉइंट क्या होगा बेटा 82 एंड हाफ। 82 और 83 के बीच का पॉइंट क्या होगा बेटा 82 एंड हाफ आपका जो है पॉइंट होगा। तो इसीलिए हमने जो है 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका लिया है। यानी कि ये आपका बिल्कुल इंडिया के सेंटर में है और यहां से हमारी वॉचेस जो हैं वो सेम टाइम आपका दिखाती है। यानी कि अगर मेरी घड़ी में इतना समय इस टाइम हुआ है तो आपकी वॉच में भी इस समय इतना ही टाइम होगा, क्योंकि हमारा टाइम जो डिटरमाइन होता है वो कहां से होता है बेटा आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 एंड हाफ डिग्री से होता है। तो यही कारण है दैट we choose the 82 and half degree east as our standard meridian। तो हमने जो है क्योंकि ये हमारे सेंटर में इसलिए हमने इसको चूज किया है। क्यों किया है बेटा, क्योंकि इंडिया का टोटल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट जो है अप्रोक्सीमेटली कितना है बेटा आपका 30 डिग्री है। कितना है बेटा 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट रह जाए तो क्या होगा, कंफ्यूजन स्टेट होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर सुबह के आपके 8 बजे होंगे तो यहाँ पे सुबह के आपके 6 बजे होंगे। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है टाइम प्रॉपर नहीं चल पाएगा, ट्रेन लेट हो जाएंगी, ट्रेन का कोई शेड्यूल नहीं रहेगा, आपका कोई शेड्यूल नहीं रहेगा कि किस समय जाना है आपका। तो इसीलिए हम जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लेते हैं, स्थानीय समय को मेजर करने के लिए, लोकल टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टैंडर्ड मेरिडियन चूज करते हैं। और इंडिया की आपकी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट है। अब एक बात तो आपने ये ध्यान में रखी कि ये हमारी जो है सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, जब भी हम किसी भी देश का, मैं इंडिया की बात नहीं कह रहा हूं, जब भी हम किसी भी देश का जो है स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करते हैं या स्टैंडर्ड टाइम की हम जो है एक मेरिडियन लेते हैं, तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 700 एंड हाफ, सॉरी बाई 7 एंड हाफ। यानी कि जब भी आप जो है किसी भी स्थान का स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूड जो है 7 एंड हाफ लॉन्गिट्यूड से जो है नंबर से जो है डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा कि अगर हम 60 मिनट को 15 डिग्री से, 15 डिग्री क्या है हमारा एक लॉन्गिट्यूड है, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो आपका जो है डिवाइड हो जाता है। इसके बाद अगर वो 15 से डिवाइड हो रहा है तो 15 का आधा क्या है 7 एंड हाफ है। तो इसी प्रकार से हम जो है जैसे किसी भी स्थान का मेजर टाइम लेते हैं, जैसे 15 डिग्री है, 15 के बाद 30, 30 के बाद आपका 45, 40 के बाद 60, 60 के बाद आपका 75 और 75 के बाद आपका 90 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे इंडिया के अकॉर्डिंग देखें, ये आपका यहाँ पे 75 के आसपास का एरिया है, ये आपका यहाँ पे 90 के आसपास का एरिया यहाँ पे आपका आता है। तो ये बहुत ज्यादा स्थान आपका हो जाता है, तो इसीलिए इसका एक सेंटर पॉइंट होना जरूरी है। तो अगर आप 75 में 7.5 प्लस कर दें तो कितना आएगा बेटा आपका, हाउ मच यू गेट 75 plus 7 and half, so I think you will get the 82 and half degree। तो यही रीजन है कि 82 and half डिग्री जो है हमने जो है आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लिया है। अगर हम ये टाइम नहीं लेते तो आपका जो है टाइम कंफ्यूजन जो आपकी हो जाती है। वन पॉइंट इज दिस बेटा। अब दूसरी बात, मैं एक बच्चे को आपका जो है अनम्यूट कर रहा हूं बेटा, मैं करता हूं बेटा, योगिता को कर देता हूं। योगिता, यस सर। हाँ जी बेटा, योगिता अनम्यूट है बेटा इस समय आप। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको कराया जिसमें मैंने बताया कि वाई वी चूज 82 एंड हाफ डिग्री एज अवर स्टैंडर्ड टाइम। डिड यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट, हैव यू अंडरस्टूड इट योगिता?
यस सर। एक चीज बेटा, अब मैं और आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे और आपने कैलकुलेट करना है बिटिया साथ साथ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग का भी पता लगेगा मेरे को। बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन? जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, जिसको हम जीएमटी के नाम से भी जानते हैं, उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, कितनी है बेटा? वो है आपकी 0 डिग्री। कितनी है बेटा योगिता, कितनी है बिटिया? 0 डिग्री। 0 डिग्री है बेटा आपकी। ठीक है बेटा, तो जो जीएमटी है उससे वर्ल्ड का टाइम आपका जो है मेजर किया जाता है। ठीक है बेटा, तो वर्ल्ड का टाइम जो मेजर आपका किया जाता है वो 0 डिग्री से आपका किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट टाइम जोन डिसाइडेड होते हैं। अच्छा, आजकल आप सभी जो है मोबाइल फोन का यूज करते हैं बेटा, क्लियर है मेरी बात? सभी लोग करते हैं। जब आप अपने मोबाइल में टाइम डिसाइड करते हैं बेटा, तो टाइम डिसाइड जब आप करते हो तो आपका एक स्टैंडर्ड टाइम आता है जीएमटी प्लस 5:30, जहां पे आपका लिखा होता है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। सबको पता है बेटा इस चीज का कि आपका जो टाइम जो है वो +5:30 हम यूज करते हैं। तो हम ऐसा क्यों लिखते हैं बेटा? ऐसा हमारे जो है आपका आपके मोबाइल में हम 5:30 को ही क्यों कंसीडर करते हैं? डू यू नो योगिता, डू यू नो? क्या आपको ज्ञात है बेटा? आपको शायद ज्ञात नहीं होगा। अब आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मैं बता रहा हूं कि हम 5:30 क्यों करते हैं। लिसन मी वेरी केयरफुली बेटा। फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी डिटरमाइन द टाइम जोन ऑफ द अर्थ, सो वी आर इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हर 15 डिग्री पर 1 आवर का टाइम आपका बढ़ जाता है। हर 15 डिग्री पे कितना टाइम बढ़ जाता है बेटा आपका? 1 आवर आपका बढ़ जाता है। अब 15 डिग्री पे कितना टाइम बढ़ जाएगा बेटा? बोल रहे बेटा, इशारा करें आप हाथ से, जैसे मैं कर रहा हूं, कितना बढ़ जाएगा बेटा? 15 डिग्री पे 1 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 1 आवर हो जाएगा। 30 डिग्री पे 2 आवर हो जाएगा। तन्मय कितना हो जाएगा बेटा? 2 आवर हो जाएगा। 45 पे 45 पे कितना हो जाएगा बेटा? 3 आवर। 60 पे 4 आवर। 75 पे 5 आवर। तो हमारा 75 डिग्री यहां पे है। 75 पे हमारा 5 आवर हो गया। और 90 पे कितना हो जाएगा बेटा? 6 आवर। हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहां पे है बेटा आपका? 82.5 पे है। यानी कि हमने 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। अब 15 डिग्री पे 1 आवर है, तो 7 आवर पे कितना होगा? आधा घंटा होगा। अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, 15 डिग्री पे कितना टाइम बढ़ेगा? 1 आवर। 30 पे 2, 45 पे 3, 60 पे 4 और 75 पे 5। अब 7.5 में कितने मिनट लेगी बेटा अर्थ रोटेट करने में? आधा घंटा लेगी। तो 75 प्लस 7.5 दैट इज 82.5। तो हम जो है जीएमटी से प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे हैं। तो इसीलिए हम जो हमारा जो टाइम है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे चलता है। इसीलिए आपके मोबाइल फोन में हमेशा हम जो अपना टाइम डिसाइड करते हैं दैट इज 5 आवर एंड 30 मिनट। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, वाई IST इज अहेड 5 आवर एंड 30 मिनट देन दी GMT। कि हमारी जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो आपकी GMT से 5.5 घंटे आगे क्यों है? तो ये रीजन है बेटा कि 15 डिग्री पे अर्थ 1 घंटा टाइम लेती है, 30 पे 2, 45 पे 3, आपका 60 पे 4, 75 पे 5, और उनका 75 और 90 का हाफ 7.5। तो 7.5 को घूमने में 30 मिनट का टाइम, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट हमको लगते हैं, अर्थ को रोटेट करने में लगते हैं। तो इसलिए हमारी जो IST है दैट इज अहेड 5 hours and 30 minutes because we are lying in the eastern हेमिस्फीयर। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अवर चैप्टर। अब एक और थोड़ा सा मेरे माइंड में आया था
कि जैसे मैंने बच्चों को बताया है अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, सो आई थिंक यू आर वेल अवेयर अबाउट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो मैंने एक टेबल तैयार की है बेटा आपके लिए जो मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा। हैव ए लुक हियर। If anyone asks you about the differences between latitude and longitude, you have to give the answer according to this. Latitude, my dear student, you are well aware that latitude is the angular distance of a place north or south of the equator, यानी कि इक्वेटर से जब आप नॉर्थ ऊपर की ओर चलते हो या साउथ नीचे की ओर चलते हो तो वो एंगुलर डिस्टेंस आपका लैटिट्यूड कहलाता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है बेटा? लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, कि प्राइम मेरिडियन से जब आप ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अपनी राइट हैंड साइड और वेस्ट डायरेक्शन अपनी लेफ्ट हैंड साइड, तो जब आप ईस्ट और वेस्ट की साइड में चलते हो तो वो एंगुलर डिस्टेंस आपका लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। तो एंगुलर जो आपके लैटिट्यूड होते हैं दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन, वो कैसी लाइन होती है बेटा? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं दे आर यूर वर्टिकल लाइन, वो आपकी वर्टिकल लाइन होती है। देयर आर 100 डिग्री देयर आर 180 डिग्री पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जो आपके टोटल लैटिट्यूड होते हैं वो 180 डिग्री आपके होते हैं। 90 डिग्री पैरेलल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड 90 डिग्री पैरेलल इन द साउथ डायरेक्शन। ऐसे ही आपके जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं दैट आर दी 360, 180 डिग्री मेरिडियन इन द ईस्ट एंड 180 डिग्री मेरिडियन इन द वेस्ट। अब जो आपके लैटिट्यूड होते हैं दे आर सर्कुलर, वो आपके सर्कुलर शेप होते हैं और यही रीजन है कि इक्वेटर को आपका क्या कहा गया है बेटा? आपका ग्रेट सर्कल कहा गया है, यानी कि सबसे बड़ा सर्कल आपका इक्वेटर है। और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं दे आर सेमी सर्कल, वो जो है आपके सेमी सर्कल होते हैं, सेमी सर्कल होते हैं, क्योंकि आपके जो हर एक जो आपका लॉन्गिट्यूड है दे मीट ऑन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ बट आर पैरेलल, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेटर आपका सबसे बड़ा है, ऊपर आप जाओगे तो घटते चले जाएंगे, नीचे आप जाओगे तो घटते चले जाएंगे। तो दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, वो लेंथ में इक्वल नहीं होते हैं बट पैरेलल, लेकिन हाँ एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, पैरेलल होते हैं। तो इनका क्या है? दे आर इक्वल इन लेंथ, ये लेंथ में इक्वल होते हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर मिलते हैं, बट आर नॉट पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं होते क्योंकि एक दूसरे से मिल जाते हैं बेटा पोल्स के ऊपर। The distance between the two parallels of latitude is assumed to be 1 degree, that is equal to 100 किलोमीटर, यानी कि आपका जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है उनमें हम देखें तो 1 डिग्री का जो उनका डिस्टेंस होता है दैट इज 100 किलोमीटर। एज आई टोल्ड यू दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इज 40,000। If we divide the 40,000 by 360, so we will get the 111 किलोमीटर, यानी कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज नॉट सेम, लेकिन जो आपके लॉन्गिट्यूड होते हैं उनका जो डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं होता है। उनका सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपका इक्वेटर पे होता है और सबसे कम आपका पोल्स के ऊपर होता है। The equator divide the earth into two equal halves, northern hemisphere and the southern hemisphere। इक्वेटर जो होता है आपकी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसका क्या है? आपका ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला पार्ट आपका सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही बेटा आपका प्राइम मेरिडियन भी आपकी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। आपका 1 ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट डायरेक्शन में आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्ट डायरेक्शन में आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और एक और डिफरेंस बेटा जो इसमें रह गया आपका दैट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड डिटरमाइन दी क्लाइमेटिक जोन ऑफ द अर्थ, कि लैटिट्यूड जो है आपकी अर्थ के क्लाइमेटिक जोन्स को डिटरमाइन करता है। जो कौन कौन से आपके? टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीजिड जोन। जबकि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन द टाइम जोन ऑफ द अर्थ। लॉन्गिट्यूड आपकी अर्थ के टाइम जोन को आपका जो है डिटरमाइन करता है। देयर आर टोटल 24 टाइम जोन, आपके टोटल 24 टाइम जोन है। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हमने जो है स्टैंडर्ड टाइम हम जो है मेजर करते हैं, जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि 82.5 डिग्री आपका जो है वो इंडिया का आपका जो है स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। कई ऐसे भी देश है बेटा जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है,
जैसे कि रसिया है आपका, सबसे बड़ा देश है बेटा रसिया वर्ल्ड में, तो उसका टोटल जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 165 के आसपास है बेटा। तो रसिया में जो है 11 स्टैंडर्ड टाइम है बेटा। कितने टाइम है बेटा आपके? 11, सबसे ज्यादा आपके रसिया में। उसके बाद बेटा कनाडा भी आपका बहुत बड़ा देश है, जहाँ पे आपके 5 आपके स्टैंडर्ड टाइम आपके जो है मेजर किए गए हैं। सो दिस इज अवर चैप्टर। आई थिंक you have understood the concept, but my dear student, if you have still any confusion you can ask me. If you have any confusion in this chapter you can convey me message through the WhatsApp number. Don't hesitate in it beta, because this is the most important chapter. Most important concept are given in this chapter that are related to the latitude and the longitudes. So today you will get the question answer of this chapter, important terms of this chapter, and assignment of this chapter. You have to just write the NCRT question in your fair notebook beta, and don't get panic, and you will get all the answer of the assignment in your book. You have to read your book very carefully, but still if you face any problem you can convey me the message beta. Okay beta, thank you, have a nice day, God bless you, and take care beta. Stay healthy, stay safe. Okay beta, God bless you. Excuse me beta, 1 minute Yes, beta. sir. Okay beta, okay. Yes, sir.